Okay, guys. So, what all things have we covered in previous class? Sir, can I? Yeah, but let me see if anybody else has anything. Anybody else? Yes, sir. Yeah, Subhasri, go ahead. So first we talked about the Linux GUI, the graphical user interface. For Windows, we must enable the RDP, and for Linux, we go for XRDP. Then we gone through the command chmod, that is to change and modification of file permission. In Linux, there are three types of owner and three types of permission. The ownerships are user, group, and other, where your permissions are read, write, and execute. The ways to change is your symbolize numeric using other interference file. So chmod means to change the ownership and the permission. Then we discussed about HDD and SSD, that is your hard disk drive and solid state drive, and the disk performance parameter, that is IOPS and throughput. IOPS is basically your input output per second, that is in 1 second how many times we can read and write an operation. In SSD, it has better, so SSD is better than HDD because of its high IUPS and high performance. If production deployment is not required, only data storage is required, we can go for SSD because of its low costing. Then we discussed about the difference between the memory and CPU. Memory is where you can store either long or short-term information. Of hard or SSD for long-term storage, and cache is for your short-term storage. Whereas your CPU is responsible for performing the basic instruction, that is operate or computer performs mathematically or logical operation. Where more CPU is required, but RAM is not needed that much, then we can go for compute optimized resources that is present in your Azure. And where RAM is needed, but CPU is not needed that much, then we can go for your memory optimized resources. So for this, first we need to understand the applications and what are its needs. Then while creating your instances, we have gone through like delete with VM. Whenever we are going with delete with VM, we have to untick always. Even if we delete the virtual machine, then the volume will be there at the backend. So in the future, if we need to restore the data, we can attach this volume to another virtual machine. Then while in the command prompt, we have gone through your sudo su, that is your super do user switch user. The dollar symbol represents the system has not entire privilege to do activity. So sudo su means we are switching the user with the root user, and then later we um, gone through your hashtag, that is your that the system has all privilege. So whenever we are host catching, we have to enable its host catching, that is your read and write. For permanent mounting, we need a UUID number. For that, we can get by tapping its BLK ID. Then we have discussed about lost plus found directory that contains files that have been deleted or lost in the disk operation. Basically, a lost and found is your construct used by FSCK system utility. When the Linux file system crashes, or basically all the files essential cover using this Linux file system checker program, all the files that are essentially put in the lost and found file system directory. That's it. Okay, that's cool. Very good, Subhasri. You have said whatever things we have covered. So, I think we have asked for some other stuffs as well. I'm missing those things. Anything which Subhasri missed, guys? Yeah, regarding that defaults and that discard 0 and 1, I missed whether you have covered that point or not. Have you looked into that part, like why it is defaults and discard 0 and 1?
Sir, actually, I have a doubt in that third assignment. Okay. Anybody else who has seen that? But that is, very easily available. Like if you can search into Google, or if you search into, into Chat GPT as well, direct, straightforward answer you will be getting with respect to that. Right. So that is pretty much simple and straightforward. But I don't know why in batch one also people have not covered that point. But that is fine. Very good, Subhashri. You have done really well. So now we will be moving ahead with the other stuffs. ठीक है? तो उसको देखो थोड़ा सा एनालिसिस करो एंड आई हैव सेड लाइक whenever you are reading or whenever you are doing any sort of research and you got to know something else, you can discuss about that point as well. Okay. And we have a chat section, right? Chat section into your app. So जब भी app में जाओगे तो into chat section when you'll go, you'll see a Azure batch 2 as well, right? So within that, activity should be going on. Like, okay, this is what I have explored, this is what we have seen. I am not expecting like, in the class, if we have 70 people will be joining into that conversation. But at least I'm expecting 10 people will be there into this batch who is going to, who is going to do really good into future as well. This is like, I remember Subhasri was there in AWS batch also. She was very good, doing very good over there as well. So what you can do is you can form your group only. If you 10 people lead a common platform, we have already provided that, right? तो चैट सेक्शन में जाओ, इंटरेक्शन करो, कोई क्या कर लिया है, किसी को कुछ में इश्यूज हैं, जस्ट लाइक XRDP1. I don't know how many of you have tried with XRDP. Have you tried to get the GUI of Linux? Anybody? कोई किए क्या? No. That is really strange. So I was thinking like within a class, if suppose we'll have 70 people, so out of 70, at least 30 will be good one. Like at least 30 people will be doing whatever I am actually teaching in the class. Out of that 30, at least 20 people will be, means at least 20 or 10 people will be at least doing whatever the challenges I used to get. I'm not talking about rest, 40 people, those who are just for increasing college money. So they are for this reason only. You have to see where you are actually lying, right? So baki log, they are just increasing the bank balance, nothing else. They are just sitting ideally and they are doing the things. We don't have to think about them. You have to come up, guys. थोड़ा सा efforts to डालो. In batch one, many of them have done it. XRDP1. तो इसका मतलब ये है कि into this batch we don't have any people those who are very sharp into debugging skills and all those stuffs. That means you have to really work hard. At least I was expecting at least 10 people into this batch. Okay. And why is this gap then, right? If we have said anything, then you should definitely try. How many of you have tried at least? Sir, I tried. Only one? Yes, I tried. Swayam Saswat Misra, have I said not to unmute yourself and speak? Okay, that is really up to you guys. Then you can do whatever you want. So that is up to you. And just I always keep on saying one thing, always, कि कभी भी ऐसा कुछ काम मत करो which is going to hurt your parents. Okay. Always make sure that what you are doing, it is always a correct one. Agar if your parents come and join this call, and if they will see this behavior and the way you are responding, the same thing I used to say in batch one as well. Agar wo aa jate hain abhi, and if Subhasri parents, if Rupal parents come and they see, okay, they will say that, okay, my money is going into the right direction. But what about others?
एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो हम देते हैं एटलीस्ट 10 लोग को तो उठ के आना चाहिए कि सर आई हैव ट्राइड इट, आई हैव डन इट, राइट? बट द फ्रीक्वेंसी इज और द नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लेस। ओके, तो थोड़ा ध्यान दो ये सब चीजों पे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल इन द कमिंग फ्यू years because the competitions are increasing a lot. And yesterday also I got one message from your seniors. Now they are saying, sir, please guide us, please help us, we are losing the opportunities, we are not able to survive, we want to get into companies, please help us, we are ready to do this AWS Azure within this month, we will be completing. So why you are waking up at the last? When you'll wake up at last, it will be everything which will be gone, right? So it's good that you start practicing from the beginning only. Otherwise, this will be a very, very, bad thing for you. So thoda sa serious ho jao. Otherwise, you will be only on trouble, not we. Chalo, I will do my job. I'll do my task. I'll give my 100% so that, I will be benefited. If from me, if ek do bacche benefit ho rahe hain, then, I should do that. But really horrible, like why you people are not able to do or why you are not doing it. Chalo, theek hai. So I'll come to my topic, which we are going to, cover up today. So we will be talking about image. Okay, image today. So just like suppose करो मेरे पास अगर एक सर्वर है, तो ये सर्वर कैसे बना है? So we have selected certain image, right? कि Windows का image इसके ऊपर डाले या Linux का image डाले या we have other flavors as well. किसका image हम डालें? So वो सब जो image होता है उसके अंदर कुछ configurations किए हुए हैं, right? That is what it has installed into this particular system. तो सपोज करो अभी मेरे पास एक सिनेरियो आया जहां पे क्या करना है, मेरे को एक सर्वर है, ये कस्टमर का एनवायरनमेंट, ओके, एंड कस्टमर के पास एक सर्वर है, एंड ये सर्वर में कस्टमर बोल रहे हैं कि ये मेरा इंटरनल सर्वर है एंड यहाँ पे मेरे जो एप्लीकेशन है वो इंटरनली यूज होता है, ओके। दैट्स द रीजन वाई उसके पास केवल एक ही सर्वर है एंड दैट सर्वर इज बेसिकली, जब कंपनी में जाओगे ना, देयर विल बी लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, जैसे CRM होते हैं, मैग्नस होते हैं, which is actually used to handle the internal things, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए वो सब यूज किए जाते हैं, टिकटिंग टूल्स वगैरह होते हैं इंटरनली, तो वो सब को भी डिप्लॉय करने के लिए वी नीड अ सर्वर, ठीक है। तो वो सर्वर पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, जैसे कि सपोज करो वो सर्वर पे जो एप्लीकेशन है उसको हम एक डोमेन के साथ मैप किए हैं, तो जब भी डोमेन को हिट करते हैं मेरे को एप्लीकेशन रेंडर हो जाता है एंड आई एम एबल टू सी दैट, करेक्ट। चलो वो बात तो ठीक है, बट हमेशा जब भी इफ यू विल गो टू एनी ऑफ द वेबसाइट, अभी देखो जैसे यहाँ पे जूम में यू विल बी हैविंग अ सिक्योर लॉक काइंड ऑफ स्टफ, राइट? बट जब भी हम आईपी एड्रेस को केवल हिट करते हैं तो वी डोंट यूज टू गेट दिस, राइट? सो ये एक SSL सर्टिफिकेट हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर उसको इंस्टॉल करेंगे देन यू विल बी गेटिंग अ सिक्योर लॉक। व्हाट इज दिस SSL सर्टिफिकेट, क्यों ये जरूरत है, ये सब बेसिकली इंक्रिप्शंस वगैरह के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो अभी ये सब चीजें जिसको समझ में, आई एम बाय लुकिंग एट द क्लास स्टैंडर्ड, आई थिंक इट विल बी वेस्ट ऑफ माई एनर्जी टू टेल यू अबाउट ऑल दोस स्टफ्स, राइट? सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन बेसिकली नो मोर अबाउट इट, बिकॉज हम किसी को समझाएंगे तो भी समझ में यहाँ पे आने वाला है नहीं, राइट? तो सिंपल टर्म में अगर हम बोले तो इट इज बेसिकली यूज फॉर इंक्रिप्शन पर्पस। अब थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, दोज हु वांट टू रियली लर्न, जिसको नहीं करना यू कैन सिट आइडल, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो वी हैव योर सर्टिफिकेट्स, ओके, इसको हम लोग वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं एंड दिस इज इशूड बाय DG सर्ट, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन इशू किया है एंड इट इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन May 2, 2024, ओके। तो अभी ये तो मेरे को सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन वगैरह मिल गया, ओके। तो अभी क्या करते हैं, सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन में SSL सर्टिफिकेट वगैरह कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, ओके। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, तो हम लोग क्या करेंगे, SSL कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करेंगे इनटू दिस, ओके। तो हम लोग SSL कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं SSL ऑफलोडिंग करना। SSL ऑफलोडिंग करके एक टर्म होता है which you don't have to get into,
वो जिसको समझना है दे कैन डू अ रिसर्च, अदरवाइज अगेन दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ माय टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पे मेरे पास मान लो मेरे पास मल्टीपल सर्वर हैं एंड ये सर्वर इज कनेक्टेड टू योर लोड बैलेंसर। ओके, नाउ ये लोड बैलेंसर है, अगर हम दिस लोड बैलेंसर इज गोइंग टू हैव सर्टेन आईपी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को अपना मैप करेंगे। माय डोमेन इज गोइंग टू हिट लोड बैलेंसर इज गोइंग टू हिट योर दिस पर्टिकुलर सर्वर। अब हम लोग एसएसएल ऑफलोडिंग हम लोग सर्वर लेवल पे भी कर सकते हैं, हम लोग लोड बैलेंसर लेवल पे भी कर सकते हैं, तो सर्वर पे भी हो जाएगा, लोड बैलेंसर पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वर पे करेंगे तो सर्वर पे थोड़ा ज्यादा मींस रिसोर्सेज वगैरह यूटिलाइज होंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। लोड बैलेंसर पे अगर होंगे तो ऑब्वियसली ऑपरेशन मेरे सर्वर पे हो रहे हैं, ना कि लोड बैलेंसर पे ज्यादा, राइट। तो जनरली हम लोग एसएसएल ऑफलोडिंग वगैरह हम लोग लोड बैलेंसर लेवल पे करते हैं, नॉट ऑन टू सर्वर लेवल। बट कोई अगर मेरा इंटरनल एप्लीकेशन है विच रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड रैम या फिर सीपीयू मेरे को चाहिए, एंड दैट इज नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल फॉर एनीबडी, जैसे कुछ इंटरनल एप्लीकेशन है मेरा, जाकर के मेरे को अटेंडेंसी मेंटेन करना है, तो मेरे ऑफिस में जितने बंदे वही यूज करेंगे, राइट। नोबडी फ्रॉम आउटसाइड विल बी यूजिंग दैट, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस करना पड़ेगा इनटू माय सर्वर। तो मान लो मेरे को एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन ही करना है, सेटअप करना है एसएसएल सर्टिफिकेट्स वगैरह ऑन माय सर्वर। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली मेरा एक सर्वर लेंगे, उस पर हम जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बट अभी देखो आए दिन चैलेंजेस आते रहते हैं। आप देखो जो एक दो रूपल सीसेट सी ट्राइड, अगर वो ट्राई की होगी तो आरडीपी वगैरह इंस्टॉलेशन करने का, XRDP वगैरह पैकेज वगैरह इंस्टॉलेशन करने का कोशिश की होगी, बट सी हैज नॉट सक्सीडेड इनटू दैट। ओके, अभी in our case when we have taken previous batches of your seniors, वहां पे out of 100 people around 40% of the people were able to deploy that, वो कर पाए। why? Because they were smart enough, they were able to debug the problem and they were able to quickly fix that, right? already ये किया है। जो लोग मेरे से लिंक्डइन में कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा, कुछ लोग they used to write certain blogs और वो ब्लॉग्स में दे हैव यूज्ड इट, एंड इन अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो यूट्यूब में है which are actually using, which have actually shown you how to do that. If you, by looking into that, you are not able to do, then I think you are wasting your parents money. You should not, right? तो थोड़ा अपना इंटरनल थोड़ा झांक के देखो what you are actually trying to do, and whatever you are trying to do that is not good at all, ठीक है? So it was like it was, I think it was better earlier for us. We were handling only 30 people, 40 people, 100 people, and they were doing phenomenally well. Here we have huge crowd, numbers are huge, but people, serious people here, I don't find it. Okay, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एसएसएल का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे इनटू सर्वर लेवल। तो सर्वर पे जाकर के जो भी हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, सो व्हाट विल हैपन इनटू दिस, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ अगर हम कमांड फायर करें तो वो कमांड मेरा गड़बड़ हो जाए, कुछ पैकेजेस वगैरह को वो अपग्रेड कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक पैकेज को मेरे को इंस्टॉल करना है, वो पैकेज का वर्जन 1 को इंस्टॉल करना है। अब वर्जन 1 को इंस्टॉल किया तो देखिए कि मेरा कुछ डिपेंडेंसीज ऐसा है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा, तो आई नीड टू अपग्रेड दिस पैकेज फ्रॉम 1 to 2। तो हम क्या किए, पैकेज 1 को इंस्टॉल कर दिए, फिर से एक दूसरा पैकेज वर्जन 2 को इंस्टॉल किए। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो बैकएंड में क्या करता है, कुछ डेटा या फिर कुछ मेटा डेटा, डेटा का भी डेटा, इट्स कॉल्ड यूजर मेटा डेटा। तो ये क्या करता है, कुछ अपने सिस्टम में ले जाके रख देता है। व्हेन यू आर गोइंग टू अनइंस्टॉल आल्सो, स्टिल वो कुछ फाइल्स वगैरह को छोड़ देता है वहां। ओके, सो जिसके कारण क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसके कारण मेरा एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग सम सॉर्ट्स ऑफ इंस्टॉलेशन, यू विल सी कि मेरे पास n number of websites होंगे। See, whenever we also work into industry, right, I'll show you how our bookmarks and everything looks like. देखो यहाँ पे you will be able to see like lots of trust, zero trust episode, data discovery, ये सब AWS का है, Azure का है, बहुत सारे Terraform का है। You'll see like n number of platforms which I have just set up. हम बुक मार्क करके रखे हुए हैं। How I am able to do it? क्योंकि जब भी एक बार सेटअप करोगे ना, you are not going to succeed into that.
लगे हुए रहना पड़ता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद टुडेज जनरेशन. दे आर नॉट गुड लिसनर, दे आर नॉट कंसिस्टेंट. लगे रहो, प्रॉब्लम आया है उस पे लगे रहो, एंड दैट इज द वे यू आर गोइंग टू सर्वाइव इनटू इंडस्ट्री. अगर एक प्रॉब्लम आ गया, इफ आई एम नॉट एबल टू डू, see you have to spend your 45 to 50 years of time into IT industry. अगर एक प्रॉब्लम आ गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, it means you will be kicked off. तो अभी से वो हैबिट को डेवलप करो. डिबगिंग स्किल्स अभी से आना चाहिए. अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दो. एक प्रॉब्लम के साथ बैठे रहना शुरू कर दो. When you'll sit with that problem, there is no problem which cannot be solved. या फिर you will be knowing the ways by which it will not be done, and you will be getting a ways by which it will be done. तो वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है. इफ यू नॉट, यू कैन इमेजिन वेयर यू आर गोइंग टू गो. अपना बिजनेस है, बैठ करके अपना इफ यू हैव सम स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बैठ के चला लो, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. बट इनटू आईटी इंडस्ट्री, इफ यू आर नॉट एबल टू डू, कंपनीज आर नॉट फुल दैट दे विल कीप यू आइडियल एंड दे विल पे यू. तो थोड़ा वो डिबगिंग स्किल्स लाना पड़ेगा. एंड हाउ यू विल डेवलप दैट? जो हम बोलते हैं उसको फॉलो करने से. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, यू आर गॉन. ठीक है. तो मेरे पास अगर एक सर्वर है, उस पे मेरे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं. इट माइट बी पॉसिबल दैट एक हम डॉक्यूमेंट फॉलो किए, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, और वो क्या कर दिया, कुछ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पेन पॉइंट फॉर मी. अगर कोई कस्टमर आ रहा है, ही इज कमिंग टू गेट हिज प्रॉब्लम सॉल्व्ड, नॉट कि आप उसका प्रॉब्लम को बढ़ाओ. तो कस्टमर के पास अगर एक सर्वर है, इसके अंदर कुछ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन वो करके रखा हुआ है, दैट इज परफेक्टली फाइन. अब कल के दिनों वो आ रहा, बोल रहा है कि मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सपायर हो गया, आप इसको रिन्यू कर दो. ये सर्वर के अंदर जाकर के हम कोई कमांड्स फायर कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज रिन्यूड. लेकिन फायर करने की जगह जब हम कमांड फायर किया, आई हैव सीन कि देयर आर सम चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ दैट मेरा वो सर्वर का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा गया. अब कस्टमर को बोल रहे, सो आई एम नॉट एबल टू डू फॉर यू. तो क्या बोलेगा, तुमको हम काम करने के लिए देते, तुम काम बिगाड़ दिए मेरा. सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ पेन पॉइंट, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कस्टमर के लाइव इन्वायरमेंट में डायरेक्टली काम नहीं करते हैं. वी शुड ऑलवेज क्रिएट अ सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड देन डू द चेंजेस. अगर वहां पे सारा काम कर रहा है, अगर वहां कुछ गड़बड़ भी हो गया, देन अगेन वी कैन क्रिएट अनदर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सेम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. उसके बाद फिर जाकर के हम उस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. इफ दैट इज वर्किंग, तब वो काम हम यहाँ पे ला करके अपने सिस्टम में करेंगे, अपने सर्वर पे करेंगे, इनटू द लाइव सर्वर, एंड देन इट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस. करेक्ट. तो सेम वे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वो उस टाइप का एनवायरनमेंट कैसे बना पाए. अगर कोई मेरे को एक सर्वर दे रहा है, इस पे अपना इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है. नाउ इफ सपोज आई वांट टू डू सम सॉर्ट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इनटू दिस, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले एक इमेज बनाते हैं. फिर ये इमेज बना करके एक हम इसका वर्चुअल मशीन बनाते हैं. तो ये जो वर्चुअल मशीन बनता है ना, इमेज लेना, अगर मान लो मेरा एक इमेज कोई ले रहा है, तो इट इज अ रेप्लिका ऑफ दैट. मेरा एक रेप्लिका क्रिएट कर रहा है, राइट, एज इट इज. अभी क्या करेंगे हम लोग, ये पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का इमेज बनाएंगे, इमेज मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएंगे, और वो इमेज से हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे. तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर था, सब कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ गया. अब हम इसके अंदर जाके आई कैन डू सम सॉर्ट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस. हम कुछ भी कमांड्स फायर कर सकते हैं. कल के दिनों कुछ अगर गड़बड़ भी हो गया ना, नो प्रॉब्लम, आई विल बी अगेन क्रिएटिंग I can again create a virtual machine. Okay, I can again create a virtual machine from this particular image, and then I will be able to do some sorts of configuration. Okay, so that is the basic fundamentals. Okay, तो मेरा challenges क्या था कि I have a server, वो server पे कुछ मेरे को internal configuration changes करने हैं, but that is a live server. If suppose I do that, that is going to create a problem for me, right? कुछ भी internal configuration changes किए हैं, that can create a problem for me. So in order to avoid such kind of a risk, such kind of problem, what we do into industry, हम लोग एक सर्वर लेते हैं, उसका एक इमेज क्रिएट करते हैं, उसके इमेज से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट किए उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं. एंड इफ दैट वर्क्स ओवर देयर, वही सेम कमांड हम ला करके अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में we used to deploy that, and once that is ready, then your problem is sorted, right? So हम लोग कभी भी लाइव सर्वर पे जा करके काम नहीं करते हैं until and unless we have done a POC. This is called as a proof of concept. ठीक है, मतलब जो हम करना चाह रहे हैं उसको एक डमी फॉर्म में हम करके देख ले रहे हैं. इफ दैट इज वर्किंग, देन ओनली आई विल बी टेकिंग इट टू योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. नाउ हाउ टू डू दैट? तो सपोज करो अभी मेरे पास एक सर्वर हम बनाते हैं. लेट मी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन एज़्योर. आई विल जस्ट क्विकली लॉग इन.
Azure portal login. This will take some time. This is the problem with Microsoft only, not with our internet. Okay. तो सबसे पहले देखो, अगर मेरे को एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, व्हाट आई नीड अ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स के ग्रुप के अंदर वी विल बी क्रिएटिंग रिसोर्सेज, राइट। तो ऑलरेडी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। व्हाट इज दैट सब्सक्रिप्शन? मेरे पास है फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन। यू कैन हैव सम अदर सब्सक्रिप्शन एज योर स्टूडेंट अकाउंट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। सो लेट मी क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे रिसोर्स का नाम, रिसोर्स ग्रुप का नाम आई कैन पुट सिलिकॉन आरजी। ओके, एंड लेट इट बी इनटू ईस्ट यूएस। ठीक है, I'll click on review and create. I'll create. Done. Now resource group is created for me. Now what do we need to create? We need to create a virtual machine. So चलो अब virtual machine पे जाते हैं. Okay, I'll click on create. Click on Azure virtual machine. Now we'll select that resource group only which we have created. और अभी यहाँ पे virtual machine का नाम दे देते हैं. Suppose I am giving web server batch 2. Suppose I am creating like this. Okay. अब यहाँ पे एक पॉइंट है which is called as your availability option. We are saying that it should not be no infrastructure redundancy required. It means generally देखो क्या होता है ना, जब भी हम लोग कुछ इमेज सेलेक्ट करते हैं, ओके, ये इमेज सेलेक्ट करते हैं या फिर ये साइज सेलेक्ट करते हैं, तो व्हाट जनरली हैपेंस इन द बैक एंड, तो अभी हम बोले कि मेरे पास एक रीजन होता है, रीजन के अंदर आई हैव योर अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर मेरे पास डेटा सेंटर्स होते हैं और वही डेटा सेंटर्स के अंदर मेरे पास रिसोर्सेज जाके डिप्लॉय होते हैं। अब वो डेटा सेंटर के अंदर इफ यू हैव दिस कैपेसिटी तभी तो वो डिप्लॉय होंगे। अगर वो डेटा सेंटर के अंदर इफ यू हैव दिस इमेज तभी तो वो जाके डिप्लॉय होंगे, राइट। सो हमेशा अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं अवेलेबिलिटी जोन और यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देयर आर चांसेस कि इस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में मेरा ये इमेज नहीं होगा, या देयर आर चांसेस कि वो पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के डेटा सेंटर में मेरे पास ये साइज अवेलेबल नहीं होगा। तो देयर आर सिनेरियोस, राइट। सो व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक यूज केस कि नहीं मेरे को इसी डेटा सेंटर के इसी अवेलेबिलिटी जोन में रखना है, then what you can do, you can select no infrastructure redundancy required. इसमें क्या होगा कि अगर उस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास कोई भी अवेलेबिलिटी जोन में अगर ये इमेज होगा और अगर ये साइज अवेलेबल होगा तो मेरे को वहां से अवेलेबल करा दिया जाएगा, राइट। तो हम लोग को कोई स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देन वी विल सी कि चलो ये स्टैंडर्ड साइज ये फ्री टियर एलिजिबल है, सो वी कैन यूज दैट। एंड ये मेरा यूजर नेम एसएसएच की पेयर नेम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल स्टफ। हम अभी क्या कर रहे हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पोर्ट भी अलाउ कर दे रहे हैं। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट ऐड डिस्क। यहाँ पे क्या करके चलना, डिलीट विद वीएम को अनटिक करके चलना। व्हाई? ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। अभी फिर से हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग आल्सो इन डेप्थ टुडे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही लेकर के चलते हैं। आई विल गो टू मैनेजमेंट, आई विल गो टू मॉनिटरिंग, गो टू एडवांस, गो टू टैक्स, आई विल रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। आई विल डाउनलोड द की पेयर। फाइन, आई विल क्लिक ऑन रिटर्न टू वर्चुअल मशीन। Let this machine get created. Done.
So now my resource is created. I'll go to resources. I'll click on connect. अब इसको SSH करते, right? So yesterday I was talking about Excel. उससे पहले I was talking about your CMD command prompt के थ्रू. आज हम लोग MobaXterm के थ्रू कनेक्ट करेंगे. How to connect that I'll tell you. तो देखो सबसे पहले ये जो की फाइल है वो कहाँ पे डाउनलोड हुआ है? Into my downloads. Okay. This should be like ये देखो वेब सर्वर बैच 2 की के नाम से डाउनलोड हुआ, राइट? तो सब कोई MobaXterm इंस्टॉल कर लिए होगे तो you should be getting this option. You have to right click onto this one, go to not properties, you have to right click and you have to click on show more option. यहाँ पे देखो open MobaXterm terminal here. Once you click onto this, it is going to redirect you to this one. ठीक है, अब ये डाउनलोड्स के पेज पे आ गए हम लोग. अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं. ओके, आई विल पेस्ट ओवर हियर. अब यहाँ पे प्राइवेट की का नाम क्या है, दैट यू नीड टू मेंशन. तो ये की का नाम क्या रखे थे हम? लेट मी से दिस वन. व्हाट इज द की नेम? सो इट इज योर वेब हाइफन सर देन बैच हाइफन 2 अंडरस्कोर की. ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं वेब हाइफन सर हाइफन बैच हाइफन 2 अंडरस्कोर की डॉट pem फाइल है ये मेरा, राइट? आई विल प्रेस एंटर. So see, I am actually connected to my server. ठीक है, अब हम क्या बोले, sudo su, why it is used for already discussed. ठीक है, cd. अब हम फिर कंट्रोल एल करके क्लियर स्क्रीन करते हैं. फाइन. अब हम बताए थे कि अगर मेरे पास एक विंडोज सर्वर है, इफ आई हैव अ विंडोज सर्वर, इफ आई वांट टू क्रिएट दैट विंडोज सर्वर एज अ वेब सर्वर, तो मेरे को वहां पे IAS का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था. एंड देन फिर जैसे कॉन्फ़िगरेशन कर देते थे उसके अंदर जाकर हम अपना एप्लीकेशन डालते थे, उसके IP एड्रेस को हिट करते थे फ्रॉम माय वेबसाइट, आई वाज एबल टू गेट द रिस्पॉन्स, राइट? सिमिलरली अगर मेरे को एक लिनक्स सिस्टम में सेटअप करना है, हाउ कैन आई प्रमोट दिस पर्टिकुलर सर्वर एज अ वेब सर्वर? कैसे प्रमोट कर सकते हैं? हाउ कैन आई डू दैट? सो वी कैन बेसिकली डू दिस विद द हेल्प ऑफ योर व्हाट, अपाचे. सो क्या कमांड फायर करना पड़ता है? apt-get install apache 2. You have to press Y. डन. अब जैसे ही हम इसको अपाचे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, हमारे पास एक फोल्डर बन जाता है. कहाँ पे? रूट के अंदर, वैर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर a folder is created. And once that folder is created, what you need to do is you need to basically create a index.html file over here. या फिर जो भी मेरा वेबसाइट का फाइल्स होंगे ना, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, सारे जो भी फाइल्स है, you need to put into this location only. तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा I'll use a echo command. ओके, एंड आई विल क्रिएट अ फाइल और उसके अंदर क्या कंटेंट होगा? हेलो फ्रॉम सर्वर, वेब सर्वर लिख देता है. हेलो फ्रॉम वेब सर्वर, यहाँ पे बैच 2 लिख देते हैं, बैच 2. ओके, वेयर आई हैव टू पुट दिस इनटू index.html. फाइन, आई विल प्रेस एंटर. जैसे ये हो जाता, वी नीड टू फायर 2 कमांड, system ctl start apache 2 and system ctl enable apache 2. once we do this, my entire configuration is now done. अब अगर हम इसका public IP को लेते हैं, if I'll come to overview and take this public IP from here, okay, and you just put this public IP, once you paste this, तो देखो यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, हेलो फ्रॉम वेब सर्वर बैच 2, राइट? तो अभी देखो, अभी के लिए बस समझ के चलो 1-2 कमांड्स, धीरे धीरे ये सारे कमांड्स याद हो जाएंगे. जस्ट लाइक वी डू नॉट नीड टू नाउ गो टू इंटरनेट टू सर्च एनी कमांड्स, वैसे ये हो जाएगा इफ यू प्रैक्टिस. इफ यू डोंट, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मेरे पास वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, उसके अंदर मेरे एप्लीकेशन चल रहे हैं, इट इज लाइव, अप एंड रनिंग. अब मेरे को बोला जा रहा है, ओके कस्टमर आ गए एंड दे आर सेइंग कि आई डोंट हैव दिस SSL सर्टिफिकेट इन प्लेस, ये नॉट सिक्योर है, आई डोंट वांट दिस टू बी इन प्लेस, मेरे को इसको सिक्योर करके दो. इट मींस कि मेरे को SSL कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. अब SSL कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, सो करने हैं तो हम ये लाइव सर्वर में जाके नहीं कर सकते, राइट? अगर कुछ हम कमांड्स फायर कर दिए विच इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम टू माय एप्लीकेशन,
तो वो बोलेंगे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह मेरा और प्रॉब्लम बढ़ा दिए, यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द कंपनी इन द नेक्स्ट डे। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को हम बोलते हैं ठीक है, अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट रेप्लिका एक तैयार कर लेते हैं और वो रेप्लिका जो होगा उसी के ऊपर हम काम करेंगे। एंड इफ दैट इज वर्किंग ओवर देयर, सेम कमांड्स हम ला करके अपने प्रोडक्शन अपने लाइव सर्वर में इंप्लीमेंट कर देंगे, एंड दैट इज डन फॉर मी, राइट। तो मेरे को रेप्लिका कैसे क्रिएट करना है, दैट इज आवर इंटेंशन। ओके, तो हाउ टू डू दैट, सो वी हैव टू कम ओवर हियर एंड यू नीड टू गो टू वेब सर्वर। अब ये सर्वर का ही रेप्लिका क्रिएट करना, राइट। सो वी कैन गो टू कैप्चर। देखो अब यहाँ पे इमेज क्रिएट करने बोलेगा, ठीक है। यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू क्रिएट अ गैलरी। तो हम यहाँ पे गैलरी में बोल देते हैं बैच टू गैलरी या फिर बैच टू, ऐसे लिख देते हैं गैलरी का नाम। ओके, लीव इट एज इट इज। यहाँ पे इमेज डेफिनेशन एक बनाना पड़ता है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू और यहाँ पे डेफिनेशन का नाम दे दो, दैट्स इट। सो हम यहाँ पे भी बैच टू दे देते हैं नाम, एंड दैट इज इट। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, एंड वंस दैट इज डन यू हैव टू गिव द वर्जन नंबर। सो हम बोल रहे 0.0.1 ये वर्जन नंबर दे रहे हैं, ठीक है। एंड लीव इट एज इट इज, सब डिफॉल्ट अपना ले लेगा। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। वंस यू डू दिस, it will say take some time and it is going to create for you. Okay, so we have to wait for that time. चलो थोड़ा सा, so it usually take 5 to 6 minutes ideally, but you cannot trust Azure. यहाँ पे once I tried yesterday, it took more than 10-15 minutes, आधा घंटे भी लग सकते हैं। So this is the biggest problem with your Azure. Okay, so what I'll do in the meantime, I'll pause the recording, otherwise unnecessarily this will be a long recording, right? Here one important thing which you have to make sure, यहाँ पे देखो जब भी हम एक इमेज बनाते हैं सर्वर का, तो ये बैकएंड में क्या करता है, सर्वर को पहले स्टॉप करता है, स्टॉप करने के बाद उसका इमेज बनाता है। देखो पहले अभी स्टॉपिंग सर्वर यहाँ पे दिखाया होगा, राइट। उसके बाद जाकर के ये फिर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द इमेज ऑफ दैट। बट सोचो कि अगर मेरा प्रोडक्शन में लाइव कुछ सर्वर चल रहे हैं, ओके, इफ एनीथिंग इज गोइंग ऑन एंड हम अपना सर्वर को स्टॉप कर रहे हैं बैकएंड में, सो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी? नो। कस्टमर बोलेगा कि मेरे को यार मेरा लाइव इन्वायरमेंट बगैर इंपैक्ट किए हुए यू डू द चेंजेस। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहे हैं और अगर ये 10 मिनट इमेज बनाने में ले रहा है एंड उसको वो शट डाउन करके रखा हुआ है, फिर कल के दिनों मेरे को उसको वापस से स्टार्ट करना है, 10 मिनट ये इमेज बनाने में लग रहा है, फिर 10 मिनट से मेरे को और 3-4 मिनट लगेंगे उसको मेरे सर्वर को स्टॉप स्टेट से स्टार्ट स्टेट में लाने में, तो मेरे पास 12-15 मिनट का डाउन टाइम आ जाएगा। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, कंपनीज कैन लूज इन मिलियंस, इन बिलियंस इफ दे आर नॉट सर्विंग फॉर 10 मिनट्स। अगर सपोज करो व्हाट्सएप विल बी डाउन फॉर 10 मिनट्स, कितना का लॉस हो जाएगा, यू कैन इमेजिन। अगर यहाँ पे इफ यूट्यूब इज डाउन, कितना का लॉस कंपनी बेयर करेगा। इफ Amazon इज डाउन, पर मिनट उसके कितने ऑर्डर्स होते हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस को लाइव रखना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बोलोगे सर यहाँ पे इमेज ले रहे शट डाउन हो जा रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम, बट ये एक तरीका है इमेज लेने का। देयर आर वेरियस अदर वेज। अभी वो सब कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ाए हैं, बिकॉज दैट यू विल बी लर्निंग इन फेस, राइट। तो धीरे धीरे जब हम लोग स्टोरेज एक्सप्लोरर, स्टोरेज अकाउंट के बारे में बात करेंगे, देन यू विल बी नोइंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस विच इज एक्चुअली फॉलोड इनटू इंडस्ट्री। तो वहां पे उसको यूज करके विदाउट इवन अ डाउन टाइम वी आर एबल टू क्रिएट एन इमेज, एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग उस पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन को रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। इफ दैट इज वर्किंग फाइन, फिर हम अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आई कैन डू द डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। तो अभी व्हाट विल डू, विल वेट फॉर सम टाइम ताकि ये मेरा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाए। इट विल टेक सम टाइम, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग अगेन। ओके, तो अब मेरा क्या हुआ, ये एक इमेज क्रिएट हो गया, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू रिसोर्स। अब मेरा इमेज बन गया। अब ये इमेज से मेरे को क्या करना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। देखो हम वही प्रोसेस बताए थे, राइट। मेरा एक प्रोडक्शन सर्वर होगा सपोज, इसका इमेज बनाएंगे, इमेज से फिर एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। एंड वंस आई डू दिस, तो अगर मेरे पास वर्चुअल मशीन में इफ आई विल बी अगर मेरा ये एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, तो जो एप्लीकेशन हम कॉन्फ़िगर किए थे इनटू माय प्रोडक्शन सर्वर सपोज, वो सेम चीजें मेरे ये जो इमेज से जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उसमें भी सेम एप्लीकेशन होने चाहिए। अगर उसका भी आईपी को हिट करेंगे, आई शुड बी एबल टू गेट फ्रॉम वेब सर्वर बैच 2,
इस टाइप का मेरे को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वीएम। तो ये इमेज जो है उसी से हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल मशीन का नाम क्या दे देते हैं, बैच 2 मशीन दे देते हैं, बैच 2 वीएम। ठीक है, फाइन। I'll come down, यहाँ पे सेम की पेयर एज इट इज, यहाँ पे HTTPS पोर्ट को अलाउ कर दो, गो टू डिस्क, leave it as it is, we have not done any changes, we'll click on review and create. I'll click on create. Done. What I'll do, I'll download this private key. Done. We'll go to return to create virtual machine. Now it will take some time to create. We'll have to wait. You are able to hear me loud and clear, right? Yes, sir. Okay. Okay, so our deployment is succeeded now. We'll go to resources. Just give me a minute. Okay, fine. तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्वर डिप्लॉय हो गया, राइट, एंड दैट इज हैविंग दैट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द इमेज ऑफ द अर्लियर सर्वर। तो मतलब अगर सारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेम आया होगा, तो मतलब अगर इसका भी पब्लिक आईपी को अगर हम हिट करें, सो आई विल बी एबल टू सी द रिस्पॉन्स, राइट। देखो इसका आईपी क्या है 226.237, इसका आईपी क्या है 61.186, जो मेरा पुराने सर्वर का था। सो इफ आई विल हिट द आईपी ऑफ दिस, तो देखो मेरे को वही रिस्पॉन्स मिल रहा है, हेलो फ्रॉम वेब सर्वर बैच 2। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स सिंपली कि मेरा ये एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट कर दिया। अब हम ये सर्वर के अंदर जा करके इसका SSH ले करके आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, राइट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। और यहाँ पे हम सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एंड इफ दैट इज वर्किंग फाइन, आई कैन ब्रिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इनटू माय लाइव सर्वर और इनटू माय प्रोडक्शन सर्वर, एंड माय इश्यूज विल बी सॉर्टेड, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट एक था। नाउ सो ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in your case there might be chances कि ये इमेज बनाने में टाइम लग जाए, उस इमेज से वर्चुअल मशीन बनाने में टाइम लग जाए, बट दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ Azure. ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर एडवांस कॉन्सेप्ट्स. So now we'll be talking about your virtual network. नेटवर्क, और इसमें मेरे पास आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में. देखो जो AWS की है उनको पता होगा रिगार्डिंग योर VPC. ओके, जो AWS में हमारे पास VPC है ना, वही यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क है. जो AWS में हमारे पास EC2 इंस्टेंस है ना, वही यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हैं, राइट. तो यहाँ पे सपोज करो मेरे को कोई भी अगर एक रिसोर्सेस को डिप्लॉय करना है,
कोई भी एक रिसोर्स, सपोज करो मेरे को एक EC2 इंस्टेंस को अगर एक डिप्लॉय करना है तो कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे? If I'll say कि okay I stay in you know I have to stay somewhere, so हम कहाँ पे स्टे करेंगे? हम अपने घर में स्टे करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर कोई एक रिसोर्स को मेरे को डिप्लॉय करके रखना है इनटू क्लाउड, सो आई नीड टू डिप्लॉय दैट इनटू अ नेटवर्क. व्हाई इट इज नीडेड? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. उसी में प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट भी कवर अप हो जाएगा. तो सपोज करो मेरे पास क्या है, हम लोग को एक रिसोर्स डिप्लॉय करने पड़ता है. इफ आई गो टू एज्योर कंसोल और हम यहाँ पे अगर इफ आई शो यू कि मेरे को अगर एक वर्चुअल मशीन ही क्रिएट करना है, सपोज आई हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ओके, एंड इफ आई गो टू क्रिएट एंड आई विल क्रिएट ऑन क्लिक ऑन एज्योर वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पे देखो इफ आई कम टू डिस्क, आई विल कम टू नेटवर्किंग, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को एक नेटवर्क सेलेक्ट करो, ओके. और अगर हम कोई एक नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, सपोज ये एक नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, तो ये बोलता है यहाँ पे अपना सबनेट सेलेक्ट करो. बट यहाँ पे अब नेटवर्क और सबनेट ये क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर मेरे को एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करने या फिर एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने, आई नीड अ नेटवर्क. तो सपोज करो एक हम बाउंड्री, लॉजिकल बाउंड्री बना दे रहे हैं और हम इसको बोल रहे हैं कि ये मेरा एक नेटवर्क है, ओके, दिस इज माय नेटवर्क. अब ये नेटवर्क के अंदर मेरा रिसोर्सेस होगा, राइट? अभी ये नेटवर्क को एज्यूम करो दिस इज योर होम, दिस इज योर हाउस. अब घर के अंदर वी हैव मल्टीपल रूम्स, राइट? क्यों रूम्स है? ताकि वी शुड फील आइसोलेटेड, थोड़ा आइसोलेट करके सब कोई को रखेंगे. इट विल बी लाइक पेरेंट्स विल बी देयर इनटू अ सिंगल रूम, you will be there into a single room, your sisters will be there into a single room, right? तो एक लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं ताकि हम लोग इंडिविजुअली सब कोई आइसोलेटेड रहे एंड वी विल गेट सम प्राइवेट स्पेस ओवर देयर, राइट? सिमिलरली अगर हम एक नेटवर्क का बात करते हैं तो एक नेटवर्क मेरा लॉजिकल बिगर लॉजिकल बाउंड्री है, उसके अंदर मेरे को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स क्रिएट करने पड़ते हैं. व्हाई डू वी नीड टू डू इट, आई विल टेल यू. तो मेरे पास यहाँ पे एक सब नेटवर्क क्रिएट कर ली, यहाँ पे एक सब नेटवर्क क्रिएट कर लिया, इसी को हम बोलते हैं सबनेट, ओके. ये भी हो गया मेरा सबनेट. सबनेट क्या है? तो मतलब एक बड़ा नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबनेट. तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या बोलेंगे? सबनेट, ओके. अब ये जो नेटवर्क होगा, हम लोग ये नेटवर्क को ना एक आइडेंटिटी देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CIDR रेंज. अब ये CIDR का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू टेल मी टुमारो, ठीक है? जो रिकैप्चुलेशन सेशन होगा उसमें मेरे को बताना. अभी हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बोलेंगे विच यू हैव टू टेल मी टुमारो, ठीक है? तो अभी CIDR का पहला टास्क, व्हाट इज द नेम ऑफ CIDR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIDR, ठीक है? अब देखो, जब भी हम एक नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हमको एक CIDR रेंज देना पड़ता है. एंड जो हम रेंज देते हैं ना, उसी से उसके अंदर वाले रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है. क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, इट विल मेक मोर सेंस व्हेन आई राइट इट. तो एक CIDR रेंज देते हैं. CIDR रेंज में हम बोलते हैं कि ये जो नेटवर्क है ना, इसको एक CIDR रेंज दो 10.0.0.0/16. व्हाट इज दिस /16? हम ये 16 ही क्यों लिखे हैं? हम यहाँ 15 क्यों नहीं लिखे हैं? व्हाई आई हैव रिटन 10.0.0.0? क्यों नहीं हम 11.0.0.0 लिखे? यू कैन राइट, you can even write 17, you can write 25, whatever you want, okay. यहाँ पे चीजें समझने वाला क्या है कि when I'm writing like this 10.0.0.0/16, 16 का मतलब होता है ये एक 8 बिट को रिजेंबल करता है. सो 8 ये मेरा कितना हो गया? 16. मतलब कि ये 2 बिट मेरे कांस्टेंट होंगे पूरे नेटवर्क में. मतलब अगर यहाँ पे अगर मेरा एक रिसोर्सेज डिप्लॉय होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक रिसोर्स डिप्लॉय हो रहा है, यहाँ पे एक रिसोर्स डिप्लॉय हो रहा है, तो उसमें मेरा कॉमन क्या होगा? ये 10.0 तो कॉमन होगा ही होगा, ओके. नेक्स्ट थिंग, अब देखो यहां पे सबसे पहला चीज CIDR रेंज मेरे को समझ में आ रहा है कि ठीक है, वो रेंज के हिसाब से मेरे अंदर के रिसोर्सेज को एक IP एड्रेस मिलेगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है. ये जो 10.0 का सीरीज ये सब क्या होगा? ये प्राइवेट IP एड्रेस होगा. अब मेरे को यहाँ पे सबनेट क्यों अलग अलग करना है? घर में हमको समझ में आ रहा है कि आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव टू कीप देम इन अ रूम, आई हैव माई ब्रदर, I have to give them a separate room. I have my sister. I have to give them a separate room. समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे मेरे पास तो सर्वर्स ही हैं. बट यहाँ पे when you will work into industry, तब मेरे को पता चलेगा हमारा जो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ही लो. अगर सपोज मेरे पास एक वेब सर्वर है, यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट्स वगैरह होस्टेड है. नाउ अगर मेरे को ये वेब सर्वर को कुछ डेटा है जो यूजर से ले रहा है, इसको मेरे को स्टोर करना, तो स्टोर कहाँ पे करेंगे? डेटाबेस में करेंगे, राइट? सो अल्टीमेटली हम दो
लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, एक मेरा पूरा वेब सर्वर के लिए और एक मेरा पूरा डेटाबेस सर्वर के लिए, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक को हम बोलते हैं वेब सबनेट, दूसरा को बोलते हैं हम डीबी सबनेट। और ये ऐसा क्यों करते हैं, हम दो आइसोलेटेड बाउंड्री बना के रखते हैं। क्यों ऐसा किए, देखो जब भी क्या होगा ना कि वेब सर्वर का बात होगा, जब जिसमें भी मेरे को एप्लीकेशन डालने होंगे, तो वो वेब सर्वर को ना मेरे को एक पब्लिक आईपी का आइडेंटिटी देना पड़ेगा, उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस देने से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई एक सर्वर है, ओके, अगर उसको पब्लिक आईपी एड्रेस है तो हम उस सर्वर तक पहुंच सकते हैं वाया योर इंटरनेट। क्या हम बोले, अच्छे से सुनना, अगर मेरे पास एक सर्वर है, अगर उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, आई कैन रीच टू दैट सर्वर वाया योर पब्लिक आईपी एड्रेस। अब देखो यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन रनिंग है, राइट, आई विल कम ओवर हेयर, ये एप्लीकेशन जो मेरा चल रहा है, हाउ इट इज वर्किंग, हम यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस को हिट किया है। अगर मेरे को बोल दिया जाए ये सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस को ले लो, आई विल डू अ डिस्कार्ड, आई विल गो हेयर, वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, ओके, दिस इज माय वेब सर्वर बैच 2। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसको एक पब्लिक आईपी 161.186, राइट, ये तो वेब सर्वर इट इज ऑन स्टॉप्ड स्टेट, राइट। अभी हम बैच 2 पे जाते हैं, वेस्ट 2 वीएम जो बनाए थे हम 226.237, ये देखो मेरा रनिंग है। कैसे रनिंग है, बिकॉज आई एम एक्चुअली हिटिंग इट्स पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मतलब कोई भी वेब सर्वर को अगर मेरे को उस तक पहुंचना है वाया इंटरनेट, आई नीड अ पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। अगर मेरे पास देखो यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी भी है, दिस इज द प्राइवेट आईपी 10.1.0.5, अगर हम यहाँ पे आते हैं और अगर हम यहाँ पे हिट करते हैं इसको, तो मेरे को कुछ हिट हो रहा है क्या, कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, राइट। तो अगर मेरे को कोई भी एक सर्वर तक आना है, इफ दैट इज योर वेब सर्वर, तो मेरे को उसको तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, राइट। देयर आर केसेस, अब एडवांस केसेस में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसर। अगर मेरा वेब सर्वर को भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है तो मेरा लोड बैलेंसर को पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, ताकि हम लोड बैलेंसर को हिट करें और लोड बैलेंसर मेरे एडब्ल्यूएस नेटवर्क में है, वो मेरा प्राइवेट आईपी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इट इज जस्ट लाइक, अभी जो कॉन्सेप्ट बोले इट इज बिट एडवांस कॉन्सेप्ट। अभी सिंपल सा एक समझो कि मेरे पास एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर मेरे पास मल्टीपल सबनेट्स हैं। सबनेट्स इसीलिए बनाते हैं हम लोग ताकि मेरे रिसोर्सेज को हम आइसोलेट करके रख सके। अब यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज हम रखेंगे जो कि इंटरनेट फेसिंग होगा, मतलब उसको आईपी एड्रेसेस होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे, ताकि हम उस तक पहुंच जाएंगे बाय एनी केस, बाय एनी चांस, ठीक। लेकिन अब मान लो मेरे पास डेटाबेस सर्वर है, ओके, मेरे पास डेटाबेस सर्वर है। अब मेरे डेटाबेस में हम चाहते हैं कि मेरा वेब सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट मेरे वेब सर्वर को आए या फिर वहां पे कुछ भी डेटा है, उसको मेरे को राइट करना है टाइम टू टाइम इनटू माय डेटाबेस। तो डेटाबेस को अल्टीमेटली कौन एक्सेस करना चाहिए, डेटाबेस को एक्सेस केवल मेरा वेब सबनेट करना चाहिए, मेरा वेब सर्वर करना चाहिए, दैट्स इट, और कोई भी बाहर से उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो जब अगर हम बोल रहे कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं करना चाहिए, मतलब बाहर से कैसे एक्सेस करेगा, बाहर से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो जब हम अगर एक सर्वर को अगर पब्लिक आईपी एड्रेस दे ही ना, तो कोई उस तक इंटरनेट से आ सकता है क्या, भाई जब पब्लिक आईपी एड्रेस ही नहीं है तो इंटरनेट से तो आ ही नहीं पाएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई, डेटाबेस सबनेट के अंदर हम डीबी सर्वर्स रखेंगे। क्या बोल रहे, डेटाबेस सबनेट के अंदर हम अगर डीबी सर्वर रखेंगे तो हम अपने वेब सर्वर को कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस सबनेट के साथ, और मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन केवल वही कर पाएंगे। तो ये कनेक्ट कैसे करेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ योर प्राइवेट आईपी। तो मतलब अगर हम बोलते अगर मेरा एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर के रिसोर्सेस इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ योर प्राइवेट आईपी। एक एग्जांपल ले लो कि सपोज ये मेरा एक घर है एंड ये घर के अंदर ये मेरा एक रूम है वेयर आई एम स्टेइंग, और ये मेरा एक अदर रूम है वेयर माय सिस्टर इज स्टेइंग। तो अभी क्या होगा, अब अगर उसको मेरे से कम्युनिकेशन करना है, इफ आई हैव टू कम्युनिकेट विद माय सिस्टर, तो मेरा दो आइडेंटिटी होगा, सबका एक एक होता है ना, घर का नाम कुछ और होता है, एंड पब्लिकली एवरीबडी कॉल्स यू विद अ डिफरेंट नेम एट योर कॉलेज, करेक्ट। तो सपोज राहुल का घर का नाम है छोटू, ओके, राहुल का घर का नाम है छोटू, तो अब उसकी सिस्टर छोटू करके उसको बुलाएगी, एंड व्हाट विल हैपन इन दिस केस, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट, राइट। बट अगर हम अभी बोले छोटू, तो हाउ इट विल बी आइडेंटिफाई कि हम राहुल को ही बोल रहे हैं, राइट। तो पब्लिक में उसका आइडेंटिटी कुछ और होगा, प्राइवेट में उसका कुछ आइडेंटिटी होगा। तो प्राइवेटली अगर घर के अंदर मेरे को छोटू बोला जा रहा है, तो मतलब मेरे को समझ में आ रहा है दे आर पॉइंटिंग टू मी और दे आर पॉइंटिंग टू राहुल,
राइट। तो अगर मेरे को इंटरनल कम्युनिकेशन करने हैं, तो इंटरनल कम्युनिकेशन जब होगा विद इन अ नेटवर्क, तो वो प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। तो क्या इंटरनल हम पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो यार। अगर मान लो इसको एक पब्लिक आईपी मिला हुआ है, राइट, इसको एक पब्लिक आईपी मिला हुआ है, इसको एक पब्लिक आईपी मिला हुआ है। इफ दिस कंप्यूटर वांट्स टू कनेक्ट विद दिस कंप्यूटर, इसको पब्लिक आईपी मान लो मिला हुआ है, तो ये कैसे बात करेगा पता? वाया इंटरनेट होकर के आकर के इसके साथ कम्युनिकेशन सेटअप करेगा। जब भी पब्लिक आईपी का बात आता है, वाया इंटरनेट कम्युनिकेशन होगा। अगर हम इसको पब्लिक आईपी नहीं दे रहे, केवल प्राइवेट आईपी दे रहे हैं, और इफ आई वांट टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन प्राइवेटली, तो ये डायरेक्ट इससे बात कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, बिकॉज ये एक नेटवर्क के अंदर है। किस नेटवर्क के अंदर है? वो AWS का या फिर एज्योर का बैकबोन नेटवर्क, इंटरनल बैकबोन नेटवर्क के थ्रू दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट। तो वहां पे ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट योर नेटवर्क मीन। तो एक नेटवर्क होगा मेरे पास, उसके अंदर मल्टीपल सब नेटवर्क्स होंगे, और वो सब नेटवर्क के अंदर मेरे पास रिसोर्सेस होंगे, एंड वो रिसोर्सेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। जस्ट लाइक यू हैव गॉट अ निकनेम एट योर होम, तो सब कोई दे विल बी इंटरेक्टिंग विद अ निकनेम ओनली, राइट। बट व्हेन यू विल कम आउट, okay, so they have to call you with your public name, करेक्ट। तो यहां पर भी वही सिस्टम बैठता है। बट अगेन यहाँ पे एक चैलेंज है यार। चैलेंज क्या है? मान लो कि डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर कर दिया। Being a cloud engineer, being a cloud solution architect, what you have done, you have created a database, और वो database को private IP दे दिया, ठीक। अब देखो, जो काम डेवलपर को आएगा वो काम मेरे को नहीं आएगा, जो काम मेरे को आएगा वो काम डेवलपर को नहीं आएगा, राइट। अब डेवलपर हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे को डेटाबेस का एक्सेस दो, मेरे को मेरे लैपटॉप से डेटाबेस का एक्सेस दो। हम AWS अकाउंट में या हम Azure अकाउंट में जा करके हम डेटाबेस के अंदर घुस करके कुछ काम नहीं करने वाले। मेरे को मेरे लैपटॉप से आई शुड बी एबल टू कनेक्ट टू माय डेटाबेस, ताकि हम उसके अंदर जाके कुछ टेबल क्रिएट कर सकें, कुछ स्कीमा क्रिएट कर सकें। देन ओनली माय एप्लीकेशन इज गोइंग टू पुट माय डेटा इनटू डेटाबेस। अब क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आधे घंटे के लिए इसको पब्लिक आईपी दे देते हैं। पब्लिक आईपी दे देंगे तो अपने सिस्टम से बैठ करके वो कनेक्ट कर लेगा डेवलपर, और डेवलपर जब कनेक्ट कर लेगा तो उसमें अपना स्कीमा बना देगा, टेबल्स वगैरह चेंज कर देगा, एवरीथिंग दे कैन डू इट, राइट। बट अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम, ये काम हम इंडस्ट्री में नहीं कर सकते जी। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को डेटाबेस को प्राइवेट ही रख करके आई हैव टू गिव डेवलपर एक्सेस कि भाई ले तू इस पे अपना स्कीमा टेबल्स वगैरह क्रिएट कर ले। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सो अभी हम लोग आने वाला कुछ क्लासेस में विल बी टॉकिंग अबाउट VPNs, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, हम लोग साइट टू साइट कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ VPN वी आर एबल टू गिव देम एक्सेस। अब जैसे VPN हम मान लो कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक है, तो जैसे कॉन्फ़िगर कर दोगे ना VPN, तो एक VPN का क्लाइंट आता है। वंस यू इंस्टॉल दैट VPN क्लाइंट ऑनटू योर सिस्टम, तो हम क्या करेंगे? ये VPN को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने Azure अकाउंट में, और वो VPN का एक क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट हम किसको दे देंगे? अपने डेवलपर को दे देंगे। मेरे डेवलपर को बोलेंगे भाई ये ले VPN क्लाइंट, ये ले आईडी, ये ले पासवर्ड। VPN क्लाइंट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर, ये आईडी और ये पासवर्ड दे करके लॉगिन कर। जैसे ही वो क्लाइंट को इंस्टॉल करेगा, आईडी पासवर्ड डालेगा, जैसे ही वो डाला, इट मींस नाउ दे आर कनेक्टेड टू दिस Azure नेटवर्क। जैसे VPN क्लाइंट इंस्टॉल किया, आईडी पासवर्ड डाला, वैसे ही जैसे ही ऑथेंटिकेशन हो गया, दे आर, उसका कंप्यूटर, उसका जो लैपटॉप है, इट इज नाउ कनेक्टेड टू Azure नेटवर्क। और अगर हम सेम नेटवर्क में आ गए तो हम प्राइवेट आईपी के थ्रू भी तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री में ऐसे ही करते हैं। हम लोग को अगर सिस्टम का एक्सेस देना रहता है, तो हम उसके सिस्टम में VPN कॉन्फ़िगर करके देते हैं, और वो VPN उस VPN के थ्रू दे आर कनेक्टिंग इट टू Azure नेटवर्क, और जैसे ही Azure नेटवर्क में आ गए, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द प्राइवेट आईपी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डू इनटू इंडस्ट्री। तो अगर हमको एक नेटवर्क का CID या रेंज सेट करना है, तो हम 10.0.0.0/16 दे देते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर मेरे को एक सबनेट बनाना है, तो आई कैन गिव लाइक दिस 10.0.1.0/24। एक और सबनेट बनाना, इसको भी एक CID या रेंज देना पड़ेगा, 10.0.2.0/24। व्हाट डज दिस मीन? अब जैसे यहाँ पे 24 बोले, मतलब यहाँ पे 3 बिट मेरा कांस्टेंट हो जाएगा,
ओके चेंजेस होंगे कहाँ पे 0 से लेकर के मेरा 255 तक चेंजेस होंगे मतलब 0 से 255 मतलब 256 फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस नंबर यू आर गेटिंग 2 to the power 8 इज व्हाट योर 256 अब यहाँ पे मेरे को जब भी हम 24 बोल रहे हैं तो मतलब कि ये तीनों कांस्टेंट है मेरा वेरिएबल कहाँ पे होगा 0 से लेकर के 255 तक मतलब 256 मेरे को आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल सकते हैं बट यहाँ पे जो 256 आईपी एड्रेस होते हैं ना इसमें से मेरे पास 10.0.1.0 फिर ये 10.0.1.1 10.0.1.2 10.0.1.3 और उसके बाद डॉट 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 10.0.1.255 these 5 IPs are reserved 255 okay these 5 IPs are reserved by your Azure for some special purpose and what is that special purpose you have to tell me tomorrow 5 IP एड्रेस ये क्यों हम लोग स्टोर करके रखते हैं क्यों इसको Azure वाले स्टोर करके रखते हैं इन द बैकएंड यू हैव टू टेल मी टुमारो ओके तो हम क्या बोले ये 5 आईपी एड्रेस के अलावा मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं मतलब अगर यहाँ पे 256 रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं अगर माइनस कर देते हैं 5 इसमें तो मेरे पास 251 आएंगे राइट तो मतलब ये सबनेट के अंदर हम 251 रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं सिमिलरली अगर डेटाबेस सबनेट का बात करें तो यहाँ पर 10.0.2.0/24 की है तो यहाँ पे क्या होगा ये भी 0 से लेकर के 255 तक जाएगा बट यहाँ पे भी 0 1 2 3 विल बी रिजर्व्ड 255 विल बी रिजर्व्ड बाकी मेरे को आईपी एड्रेस कहां से मिलने शुरू होंगे 4 से लेकर के 254 तक तो अल्टीमेटली मेरे को यहां पर भी 251 रिसोर्सेज हम डिप्लॉय कर पाएंगे सो अगर हम एक पूरा नेटवर्क का बात करते हैं 10.0.0.0/16 तो इसका मतलब कि हम कितने रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय कर पाएंगे अगर हम कुछ ऐसा करते हैं 10.0.0.0/8 तब हम कितने रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय कर पाएंगे अगर 8 मतलब यही मेरा कांस्टेंट बिट होगा राइट बाकी सब मेरा वेरिएबल होगा सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी विल बी एबल टू क्रिएट ठीक है दिस इज द अनदर क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेल मी टुमारो सो अगर हम हाँ नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी कैन क्रिएट ओके जब हम ये 10.0.0/16 लिख रहे हैं तब कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस हम क्रिएट कर सकते हैं हम एक एग्जांपल देके बताएं राइट 10.0.1.0/24 कर रहे हैं मतलब यहाँ पे 24 बिट कांस्टेंट हो गए मेरा चेंजेस कहां से होंगे 0 से लेके 255 तक होंगे क्यों 255 क्यों टोटल 256 हो रहा है क्योंकि 2 to the power 8 is 256 फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द कैलकुलेशन और इसके अंदर भी 5 आईपी एड्रेस रिजर्व्ड होते हैं तो मेरे को टोटल 251 रिसोर्सेज हम इसके अंदर एक वेब सबनेट के अंदर क्रिएट कर पाएंगे ओके अगर अभी हम एक क्वेश्चन पूछें कि अगर मेरा एक रिसोर्स है जिसका आईपी एड्रेस इज दिस वन 10 डॉट नॉट लाइक दिस वन उसका आईपी एड्रेस है सपोज एक सर्वर हम बनाए हैं उसका आईपी एड्रेस है 10.1.0.256 या 254 ठीक है हम क्या बोले 10.1.0.254 अगर एक मेरा सर्वर है उसका आईपी एड्रेस इज दिस वन सो कैन यू से दैट दिस पर्टिकुलर सर्वर इज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क हम बोल रहे हैं मेरा एक सर्वर है उसका आईपी एड्रेस मिला हुआ 10.1.0.254 ओके कैन आई से दैट दिस पर्टिकुलर सर्वर इज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क Yes, sir. हाउ कैन यू से दैट By looking at the first 3 bits, 10, 1, and 0. तो 10 1 0 कौन सा बिट में है हाउ कैन यू से दैट इट इज बिलोंगिंग टू दिस नेटवर्क एनीबडी एल्स एनीबडी एल्स ये नेटवर्क का सीआईडी रेंज क्या है The 3. नेटवर्क का सीआईडी रेंज हम पूछ रहे हैं 10.0.0.0/16 दिस इज द सीआईडी 16. Yes. राइट अभी हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे एक सर्वर है वो सर्वर का आईपी एड्रेस इज 10.1.0.254 क्या हम बोल सकते हैं कि ये सर्वर इज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क Sir, Yes, sir. Yes, sir, because it's between the 225 to 255.
Okay, it means you have not understood it very properly. No problem. Because it lies within the CIDR range. That The Again, same CIDR range, but in different network. क्या? Yes, Subhashri. The same CIDR range, but in different network. No, देखो No, देखो sir, because it should be 10.0 means first it should be same. गुड संकल्प. सो देखो, जब भी हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क का CIDR रेंज इज 10.0.0.0/16, इट मींस कि मेरा ये 2 बिट कांस्टेंट होना ही चाहिए. 16 बोले मतलब 2 बिट मेरा कांस्टेंट होना ही चाहिए. ये 8 ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए. अगर हम बोल रहे हैं कि एक मेरा सर्वर है, उसको मेरा IP एड्रेस मिला 10.1.0.254, इज इट बिलोंगिंग टू दिस नेटवर्क? नो. क्यों नहीं भाई? यहाँ पे 16 है तो 16 है मतलब ये 2 बिट कांस्टेंट होगा. 10 और 0 आगे में होना ही चाहिए. अगर यहाँ पे नहीं है तो ये कैसे मेरा एक नेटवर्क के अंदर? ये मेरा सेम नेटवर्क के अंदर नहीं है. दिस इज नॉट फॉलिंग अंडर दिस नेटवर्क. व्हाई? बिकॉज ये नेटवर्क का CIDR रेंज इज 10.0.0/16, राइट? और जैसे ये 16 हो गया, इट मींस दिस इज, ये जैसे 10.0 हो गया, ये 2 बिट कांस्टेंट होना चाहिए. यहाँ पे 10.1 हो गया, इट मींस दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस नेटवर्क. अगर अभी हम एक क्वेश्चन पूछें कि क्या मेरा ये रेंज, अगर एक सर्वर है उसको अगर ये IP एड्रेस मिला है, इज इट बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क? No, sir. Yes, sir. Yes, हाउ? sir. Why? Sir, according to you, the first two digit 10.0 is constant. Therefore, it is belonging to this network, and we can change that last two digit 2 and 5. परफेक्ट. तो अभी अगर बताओ कि ये मेरा इस पर्टिकुलर नेटवर्क में है, दैट इज फाइन. क्या बता सकते हो ये मेरा कौन से सबनेट के अंदर है? So Sir, second subnet. Database database subnet. subnet के अंदर है. क्यों? सर क्योंकि ना थर्ड डिजिट 2 है और हमारे डेटाबेस का डिजिट भी 2 है. उसके अंदर जाके 5 नंबर पे ये सर्वर कनेक्टेड है. बट देर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर मिसिंग. ये ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट कि ये डेटाबेस सबनेट के अंदर जाएगा. बट यहाँ पे देखो, इसका जो डेटाबेस सबनेट का CIDR रेंज है, इट इज 10.0.2.0/24. इट मींस कि मेरा ये 3 कांस्टेंट होगा, राइट? जब 3 कांस्टेंट है और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो आई कैन से ओके ये मेरा डेटाबेस सबनेट का पार्ट है. So you have to include this 24, okay? So you have to say 3 bit constant है and this 3 bit are constant for the database subnet. So ये मेरा database subnet के अंदर lie करेगा. Making sense? यस सर. अगर मान लो मेरे को एक सर्वर है, उसको IP एड्रेस मिला है 10.0.1.3. अब मेरे को बताओ ये किसके अंदर लाई करता है? Whether it is So coming the first one. The first one. first one. सबसे पहले बताओ whether it is a part of which network? ये नेटवर्क का हिस्सा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why we can say? क्योंकि ये 10.0 है, right? 10.0 है. Yes. Fine. अब ये कौन से सबनेट का हिस्सा है? First Web one. subnet, sir. Web क्यों हम server. ऐसा Yes. बोल सकते हैं? क्यों हम ऐसा बोलेंगे? It is a part of your first subnet. Sir, क्योंकि ना because सर the first फर्स्ट 10. 3 digits are same as of the web subnet ID IP. अच्छा, that is fine. Anybody else has any answer कि ये मेरा वेब सबनेट का ही हिस्सा होगा? Anybody else has any different answer? Because the range is 24, so Sir, the the first three range. should be Yes, same. sir. Yes, sir. Exactly. Okay. So range is 24, तो ये वेब सबनेट का हिस्सा होगा. Anybody else who has any other answer than this? No? Sir, you told that 0, 1, 2, 3 won't be counted. Means it is reserved in Azure. करेक्ट. तो ऐसा IP मिल ही नहीं सकता. ओके, ऐसा IP मिल ही नहीं सकता. इसलिए हम बोलते हैं यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर. ठीक है?
पहले सुनो, अच्छे से सुनो व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग फॉर। हम यहाँ पे पहले ही बताएं कि देखो यहाँ पे जब भी /24 लिखेंगे तो टोटल मेरे को 256 आईपी एलोकेट होंगे, लेकिन ये 256 आईपी में से 5 आईपी एड्रेस रिजर्व्ड होते हैं एज्योर के लिए। अब वो क्यों रिजर्व होते हैं, दैट यू हैव टू टेल मी टुमारो। ठीक है, तो ये कौन कौन से आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं, ये 0, 1, 2, 3 और 255 वाले। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10.0.1.3 ये एक सर्वर को आईपी मिल गया। यू शुड से कि सर ये आईपी मिल ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो रिजर्व्ड है। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन, अगर ये जवाब दे दिए आई विल अंडरस्टैंड कि यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। सपोज मेरे पास एक सर्वर है और ये सर्वर का आईपी एड्रेस is 10.0.3.75 है, ठीक है। इज इट बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क? Yes, sir. ये कौन से सबनेट में लाई करेगा? सर कोई और सबनेट जो क्रिएट करेंगे सर। नो वेरी गुड, यू आर राइट। तो हम यहाँ पे एक ऐसा रेंज दिए हैं विच इज योर 10.0.3.75। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि दिस विल लाई अंडर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, बट ये अभी कोई सबनेट का हिस्सा मेरे को नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी सबनेट वेयर यू हैव फिक्स्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो इसलिए इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, बट विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सब नेटवर्क, right? Or else if only this 2 subnet is there, then this cannot be a part of this particular network as well, right? So this should be your answer. Making sense? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. everybody Yes. चलो ठीक है, Yes, sir. ये समझ में आ गया, right? And we have understood also the importance of public IP address and private IP address as well. तो हमको पता चल गया कि जब भी मेरे को कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन योर इंटरनल रिसोर्सेस, तो हम लोग प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हम लोग डेटाबेस को एक डिफरेंट सबनेट में ही रखते हैं, सो दैट वेब सबनेट के जो रिसोर्सेस हैं वही मेरे डेटाबेस को केवल एक्सेस कर पाए एंड नो अदर सबनेट। ओके, ठीक है। So what we can do quickly is we can do this lab as well, but the thing is like we have not done this lab. The discussion went on for a long time into batch 1, so we are left with some time, but if we'll do this lab, then the synchronization will not be there, right, between your batch 1 and batch 2. ठीक है, so what we can do is we can stop here only, और हम लोग कल इसका लैब करेंगे, okay, so that we'll be synchronized with your batch 1 and batch 2. So वहां पे discussion went quite long for this particular networking and all those stuffs, and here you are able to understand it quickly. ठीक है, so overall if I'll summarize, then we have understood important concept related to your images. Okay, हम लोग image के बारे समझे, where we have seen कि कैसे real time into industry what we do, we used to create a image of our virtual machine, and वो virtual image से we used to create another virtual machine, and then उस पे हम लोग अपना testing करते हैं, and then we used to implement the same into the live server, ताकि मेरा कुछ भी changes यहाँ पे impact ना करे. That is one thing. Another thing we understood about your network, ये virtual network होता क्या है, इसके CIDR range के बारे थोड़ा सा देखें हम लोग, एंड देन वी हैव सीन कि कैसे हम लोग एक बड़ा नेटवर्क को एक छोटा छोटा नेटवर्क में भी हम लोग बांट सकते हैं, एंड वी हैव आल्सो सीन कि ये जो छोटा छोटा नेटवर्क में हम लोग बांटेंगे तो व्हाई देयर आर 2 आईपी एड्रेसेस एसोसिएटेड विद इट। अगर मेरे को कोई भी ऐसा काम करना है, अगर इफ आई हैव टू रीच टू माय सर्वर वाया योर इंटरनेट, सो आई नीड पब्लिक आईपी एड्रेस, वन थिंग। अनदर थिंग इज if I have to have a server, अगर उसके बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन करवाना है,
जो resources हैं within them only, then I can even communicate with the private IP address. हम लोग इंडस्ट्री में what is the best practice? We don't have to give public IP address to your database. अगर डेवलपर को जरूरत है डेटाबेस एक्सेस करने का तो उसको प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी से यू कैन नॉट एक्सेस इट, राइट? तो जब एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट आईपी से तो हमको उसको वीपीएन सेटअप करके देना पड़ता है। तो जैसे ही वो अपने सिस्टम में वीपीएन को इंस्टॉल करता है, वीपीएन क्लाइंट को इंस्टॉल करता है, एंड एज सून एज दे आर entering your user ID and password, they are connected to this particular network. Azure के नेटवर्क से कनेक्ट कर जाता है, and as soon as they are connected with that network, तो फिर क्या हो जाएगा? They will be able to set up your communication via your private IP, right? So this is how we actually work into industry. तो एक कॉन्सेप्ट है which is related to your networking. अब वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर देते हैं, मे बी आई विल रिकैप दैट इनटू योर बैच 1. तो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, सपोज आई हैव अ नेटवर्क, मेरे पास ये एक नेटवर्क 1 है, ओके, नेटवर्क 1, आई हैव दिस नेटवर्क 2, ओके. अब यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल सबनेट्स हैं, यहाँ पर भी मेरे पास मल्टीपल सबनेट्स हैं. अब मेरे को पता है कि ये जो एक नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्सेस होंगे ना, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, फाइन. अब यहाँ पर मेरे पास एक नेटवर्क और है, इसके अंदर के रिसोर्सेस भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम. बट द चैलेंज इज, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक वेब सर्वर है विच वांट्स टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सर्वर ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क. देयर कैन बी अ सिनेरियो लाइक दिस ऑल्सो. तो अगर एक दूसरा नेटवर्क में अगर कोई मेरा रिसोर्स है, इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर रिसोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, हाउ दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट? सो क्या ये लोग प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकेंगे? नो. व्हाई? बिकॉज दे आर इनटू डिफरेंट नेटवर्क. तो प्राइवेट आईपी के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो व्हाट वी नीड टू डू इन सच केसेस, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड एज वीनेट पियरिंग. वीनेट पियरिंग इन एज़्योर. तो हम लोग क्या करते हैं, वीनेट पियरिंग को इनेबल कर देते हैं. तो जैसे वीनेट पियरिंग करते हैं तो हम लोग को वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता है. सो वी यूज्ड टू कनेक्ट दिस टू नेटवर्क. जैसे ये पियरिंग कनेक्शन इनेबल हो गया, वैसे ही क्या होगा, दिस पर्टिकुलर वेब सर्वर विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर डेटाबेस सर्वर, ओके, वाया योर प्राइवेट आईपी ऑल्सो. तो अगर मेरा ऐसा सिनेरियो है जहां पे मेरे पास 2 डिफरेंट नेटवर्क है, या 3 डिफरेंट नेटवर्क है, या 4 डिफरेंट नेटवर्क है, अगर उसके बीच में मेरे को आपस में, उसके रिसोर्सेज के बीच में आपस में मेरे को इंटरनल कम्युनिकेशन करवाना है वाया योर प्राइवेट आईपी, सो हाउ वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम? बाय द हेल्प ऑफ योर वीनेट पियरिंग. तो वीनेट पियरिंग हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा, वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग बोलते हैं इसको. एंड वंस वी सेटअप दैट, तो हमको वहां पे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे. जैसे डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, द रिसोर्सेज विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ private IP as well. Making sense, guys? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो आज का लैब you have to do it. Okay, we will be closing it a bit early today. तो आज का लैब हम लोग कर लेना, वो कैप्चर इमेज वाला. This might take some time. Okay, so for batch 1 it has taken some time, and that's the reason why we have not able to complete, this virtual network lab. Okay, so उसको हम लोग कल कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय कैप्चरिंग द इमेज, उसके बाद फिर से वापस से क्रिएट करना वर्चुअल मशीन उससे, है ना. दैट विल बी डूइंग इनटू द लैब सेशन टुडे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर स्टफ्स इनटू द नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है. सो इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क. लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग देन.